قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ النبی الامین المتین الکریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اما بعد، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے سلام کرتا ہوں، جوش اور خروش کے ساتھ جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اپنے موضوع سے آگاہی کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ موضوع کیا ہے اور آپ کی دلچسپی بھی بڑھے اور سننے کا ذوق و شوق بیدار ہے۔ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دنیا و آخرت کی کامیابی۔ کچھ جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، بندے پروردگارم امت احمد نبی، دور دار 4000 کعبہ اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ایک بات میرا پاک پڑھیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی امت والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین پیروی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ حیات، اور صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ حکم دیا اطاعت کا۔ بہت سے مقامات پر، متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی کے اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے بتا دے کہ میرا ہی طریقہ حق ہے، میرے راستے پہ چلو گے تو دنیا و آخرت کی کامیابی پاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ اپنی امتیوں سے فرما دیجئے اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو تم مجھ سے محبت کرو، یعنی میری فرمانبرداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنا دے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی متعدد مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، ان کی فرمانبرداری کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ صحابہ کرام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے کس قدر محبت فرمایا کرتے۔ ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف کی پیش کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں ہے اللہ کے رسول کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب بھی بات کرتے تو مسکرایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ سے کہا اے بیٹے دادا، تم اس طرح بات کرتے ہوئے مسکراتے ہو، لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ حضرت ابو درداء کا
जवाब सुनिए। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे अम्मी जान, ये मुस्कुराना मेरा अपना नहीं है, बल्कि ये मुस्कुराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में है। इसलिए कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब भी बात करते सुना तो देखा कि सरकार बात करते वक्त मुस्कुराया करते थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। हम और आप जब एक दूसरे से मिले तो हमें चाहिए कि हम मुस्कुरा कर बात करें, इसलिए कि जब बंदा मुस्कुरा कर बात करता है तो जिससे बात करता है उसके दिल में उसकी मोहब्बत घर कर जाती है, और जब मुस्कुरा के बात करेगा तो कोई ऐसी बात आएगी नहीं जिससे आपस में फसाद हो, इंतशार हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का लाख एहसान है कि हमको उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पैदा किया। वो नबी उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, हमने आपको सारी जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। सरकार हमारे बहुत बड़े रहमतुल लिल आलमीन हैं। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में एक जंगल घर बकरियों का रेवड़, यानी इतनी बकरियों का रेवड़ आया आपकी मिल्कियत में जिससे जंगल भर जाए। एक साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तो मालदार कर दिया। हमारे नबी की सखावत देखिए। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ये सारी बकरियां मैं तुम्हें देता हूं। वो अपने काम में गए और कहने लगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, इसलिए कि जो नबी से वाबस्ता हो जाता है उसकी दुनिया भी समझ जाती है, आखिरत भी समझ। सुभान अल्लाह। तो हमें और आपको चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत करीमा पर अमल करें। आप जानते होंगे कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला सरकार से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। सरकार ने एक बार कहा था मजलिस में कि मुझे सफर करना है, निकलना है, हिजरत करनी है, मदीना मुनव्वरा हिजरत करनी है। उसी दिन से आप हर रोज दरवाजे पे खड़े रहा करते थे कि सरकार आए तो मैं खड़ा मिलूं, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को तकलीफ हो, मैं सोता रह जाऊं और सरकार चले जाएं, या सरकार हमें बुलाए हम सुन ना पाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार से इतनी मोहब्बत फरमाते थे। चुनांचे जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का दिन आया तो अपनी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं, ऐ मेरी बेटी आयशा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कफन में कितने कपड़े थे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस दिन इस दुनिया से ज़ाहिरन तशरीफ ले गए थे? पूछने का मकसद ये नहीं था बल्कि कि कितने कपड़े थे किस दिन, बल्कि मकसद ये था कि जिस तरह मैंने पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए गुजारी आखिरी लम्हात हो जिंदगी के, तो वो भी सुन्नत रसूल पे गुजरे। सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, ये था सहाबा का इश्क रसूल। आज हम सुन्नतों को तर्क कर दिए हैं, सुन्नत पे अमल करना छोड़ दिए हैं, इसलिए हम हर जगह परेशान नजर आते हैं। आज आप देख रहे हैं, गौर से सुनिएगा, बहुत पॉइंटेड बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा क्योंकि वक्त भी कम है और 15 मिनट का ही वक्त रहता है बस में, ज्यादा से ज्यादा एक मुकर्रर के लिए। इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनकर की सुन्नत को छोड़ करके आज हम पूरी दुनिया में खाइब व खासिर हैं। हर कोई हमको सता रहा है। आज हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ नहीं कर सकते। आज ऐलान आया है कि अगर फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए, गाजा के मजलूमों के लिए कोई दुआ करेगा तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम इतने लाचार और मजबूर क्यों हुए? इस वजह से हुए कि हमने सुन्नत नबी को छोड़ दिया। आज देख रहे हैं कि एक छोटा सा मुल्क जिसको इजराइल कहते हैं,
इजराइल की आबादी कितनी है? कुल यहूदियों की तादाद 1,35,00,000 से ज्यादा नहीं। और ये यहूदी वो हैं जिनको 1947 के अंदर फिलिस्तीन में बसाया गया बाकायदा। छोटी सी तादाद थी इनकी, ये कमजोर थे। हिटलर को आप जानते होंगे, हिटलर ने गैस के चेंबर में बंद करके इन लोगों को वासिले जहन्नम किया था। 5 से 6 लाख, एक दिमाग में 7 लाख यहूदी ये उस चेंबर में मारे गए। ये वो कौम है जिसको पूरी दुनिया ने मारा है, सताया है, किसी ने अपने मुल्क से निकाला है, किसी ने इनको कत्ल किया है, हर जगह से जलीलो ख्वार हुए हैं, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया उनसे डरती है। आज मुस्लिम 57 ममालिक हैं, आप देख रहे हैं 57 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल की तरफ आंख उठा कर देखे। सब सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, मीटिंग बैठाते हैं, लेकिन एक भी बम किसी ने नहीं चलाया, एक भी बम किसी ने नहीं चलाया। बुज़दिल हो गए हैं, इस वजह से बुज़दिल हो गए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिए हैं। और वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाकर कामयाब हो गए। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि वो तो यहूदी हैं, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कैसे अपनाया और कैसे कामयाब हो गए? तो मैं उसका जवाब यूं दूंगा कि जब चौथी प्रधानमंत्री इजराइल की एक लेडी बनी जिसका नाम गोल्डा मायरा था, जिसका नाम क्या था? गोल्डा मायरा। जब वो इजराइल की प्रधानमंत्री बनी तो उस वक्त इजराइल के हालात अच्छे नहीं थे, लोग भूखमरी का शिकार थे। टीवी न्यूज वाले और मीडिया वाले आवाम सब गोल्डा मायरा से ही पूछ रहे थे कि आप क्या कर रही हैं, हम भूखे मर रहे हैं, आप हमारे खाने का इंतजाम करें। लेकिन गोल्डा मायरा ने उनके खाने को बाद में देखा। सबसे पहले जितने पैसे थे उसके पास, जितने पैसे आते थे सबसे, कभी मिस्र जा करके, कभी चाइना जा करके, तो कभी रूस जाकर, कभी अमेरिका जा करके उसने हथियार जमा किए। क्या किए? हथियार जमा किए। हथियार जमा करती रही और एक दौर आया 1948 का, जब अरब मुल्कों से जंग छिड़ गया। ये छोटा सा मुल्क आपको मैं बताऊं चारों जानिब से मुस्लिम ममालिक से घिरा हुआ। इधर इजिप्ट है, मिस्र है, सीरिया है और उधर गाजा है, बीच में समुंदर है और फिलिस्तीन का टेंशन तो और है इसको। लेकिन इन सब के बावजूद 1948 से जंग शुरू हुई और 1967 में जाकर जंग खत्म हुई। और जानते हैं उस जब जंग खत्म हुई तो गोल्डा मायरा ने ऐलान किया कि हम जीत गए, हम जीत गए। इसको फलाह नुसरत मिली और फलाह नुसरत मिली और फिलिस्तीन के 80% इलाके पर इसने कब्जा कर लिया। 20% सिर्फ फिलिस्तीन बचा हुआ है जिसकी जंग लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो भी हम फतह कर दें। अरब देशों ने उस वक्त जंग चालू किया और इसका मुकाबला किया, लेकिन जीत नहीं पाए। क्यों जीत नहीं पाए? क्योंकि उन्होंने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल नहीं किया। मैंने आपको बताया अभी कि जब गोल्डा मायरा कुर्सी पर बैठी प्रधानमंत्री बनी तो आवाम आई थी, कहने लगी थी गोल्डा मायरा क्या कर रही हैं, मैडम आप ये क्या कर रही हैं, हमें भूखा मार रही हैं। गोल्डा मायरा ने क्या जवाब दिया था? कहा था थोड़े दिनों बाद आना फिर मुझसे सवाल करना। फिर वो जब जीत गई जंग तो गोल्डा मायरा ने मीडिया वालों को बुलाया, आवाम को बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा देखा हमारी ताकत, आज हम पूरी दुनिया पर गालिब हैं। लोगों ने कहा मैडम आपने ऐसा क्या ट्रिक अपनाया, क्या तरीका अपनाया कि आज हम जहां मारे जा रहे थे और हम इस तरह परेशान थे, लेकिन आज हम इतने मजबूत हैं। जानते हो गोल्डा मायरा ने क्या जवाब दिया था? गोल्डा मायरा ने जवाब दिया था आज मेरी कामयाबी, हमारी कामयाबी का सबब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग हैरान हो पूछने लगे वो कैसे? गोल्डा मायरा ने कहा कि मैं जब कॉलेज में थी तो मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी, एक तारीख की किताब में एक चैप्टर पढ़ा जो बेस था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर। मैंने पढ़ा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दौलत कितनी थी, तो मुझे पता चला कि उनके पास दौलत नहीं ज़्यादा नहीं थी, उनके पास सिर्फ 2 कपड़े थे, वो भी फटे और पुराने थे। लेकिन आपके घर में 9 तलवारें थी। और मैंने पढ़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 से 27 जंगों में तशरीफ ले गए अपनी दिफा के लिए और वहां कामयाब हुए। और सिर्फ 10 साल के अंदर मोहम्मद अरबी ने अपना वो लोहा मनवाया जिसको पूरी दुनिया आज भी मानती। मैंने देखा कि नबी भूखा है लेकिन हाथों में तलवार है, नबी प्यासा है, उसके सहाबी उसके साथी भूखे हैं लेकिन हाथों में तलवार है। आपको जंगे खंदक याद नहीं, सरकार 2-2 पत्थर अपने शिकमे मुबारक पर बांधे हुए थे, सहाबा एक बांधे हुए थे, लेकिन हाथों में तलवार थी, हाथों में तलवार थी और जिहाद किया। छोटा सा लश्कर आप जानते हैं मुसलमानों की तादाद कितनी जंगों में कितनी रही है, कहीं 313 रही है, तो उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, हथियार कम है, लेकिन जज्बा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी इताअत का हुक्म दिया करते थे तो सहाबा उसको बजाया करते थे। चुनांचे गज़वे अहज़ाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी है हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया सरकार ने कि जाओ काफिरों का मुहासबा करके आओ, देखो वो कैसे हैं, कहाँ पर पड़ाव डाले हुए हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकलते हैं तो देखते हैं सुफियान एक हाथ आग ताप रहे हैं। आपने तीर कमान में लगाई और निशाना साधा, लेकिन निशाना जब साधा है तो ख्याल क्या आया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था मुहासबा करने के लिए और ये भी बताया था, मना किया था कि सिर्फ मुहासबा करके आना, कोई झगड़ा ना करना जिससे बात बढ़ जाए, मुहासबा करके आना, मुझे बताना। आप तुरंत कमान को नीचे कर लेते हैं। ये है इत्तिबाए रसूल, ये है इत्तिबाए रसूल। इसलिए जंगों में तादाद कम भी होती थी फिर भी सहाबा जीत जाया करते थे। और आज मुसलमानों की आबादी कितनी है लेकिन हम कितने खायबों का फासिल, हमने सुन्नत नबी को छोड़ दिया। बताइए एक काफिरा गोल्डा मायरा जो कि यहूदी है, मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है, लेकिन उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाया और उसने हथियार जमा किए। और मैं आपको बता दूं जब ये जंग हुई थी तो अरब देश क्यों हारे थे, सिर्फ इसलिए हारे थे कि उनके पास हथियार नहीं थे, कुछ थे तो खत्म हो गए थे, लेकिन क्योंकि इसने तमाम ममालिक से हथियार जमा कर लिए थे इस वजह से ये गालिब आ गई और इसने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जात को अपना आइडियल बनाया और वो कामयाब हो गई। आज यही वजह है कि कोई उसकी तरफ नहीं देख पाता। सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम किसी के पास है तो वो इजराइल है, वो इजराइल है। अपनी गुफ्तगू को चंद जुमलों के साथ में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत ने हमको एक नारा दिया था, इत्तेहाद जिंदगी है इख्तिलाफ मौत है। बोलो ना, इत्तेहाद जिंदगी है इख्तिलाफ मौत है। उस नारे को हम भूल गए हैं, अपने असलाफ के नारे को हम भूल गए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं ये यहूदी कौम अपनी नस्लों पे काम करती है। क्या करती है? अपनी नस्लों पे काम करती है। अगर आप जाएं और कहें मुझे यहूदियत में मैं दाखिल कर लें, वो कहेंगे आप हमारे घर खाना खाइए रहिए लेकिन हम आपको यहूदियत में दाखिल नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं? अपने नस्ल पे काम करते हैं। यहूदियों ने 37 तंजीमें बनाई हुई हैं। कितनी? 37 तंजीमें बनाई हुई हैं और अपनी नस्लों पर काम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं पूरी यहूदी एक तरफ है और लड़ रहे हैं और देखिए कोई उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। लेकिन हम मुसलमान कितनी तादाद में हैं, लेकिन आज हमने इत्तिबाए रसूल को छोड़ दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी को तर्क कर दिया है, जिसकी वजह से हम परेशान नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फूल की सैर चमन फूल
نے ساتھ رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، دولت عشق نبی سینوں میں بسائے رکھنا، یہ وہ ہیرا ہے جسے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔